اے مدینہ والو، لو جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ کیا کہا؟ کیا وہ واقعی آ گئے؟ جلدی چلو، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ مدینہ کی آنکھیں پیاسی تھیں اور دل بے قرار۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ لگتا ہے آج بھی وہ نہیں آئیں گے۔ چلو اپنے گھروں کو واپس چلتے ہیں۔ اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ ننھے بچے بھی راستے پر نظریں جمائے کھڑے رہتے۔ تپتی دھوپ جب جسموں کو جھلسانے لگتی اور امید کے سائے ڈھلنے لگتے تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ حسرت لیے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا مہمان صلی اللہ علیہ وسلم بس چند قدموں کی دوری پر ہے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بے آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، لو جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ کیا کہا؟ کیا وہ واقعی آ گئے؟ جلدی چلو، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ لوگ دیوانہ وار اس طرف دوڑے، مگر ایک لمحے کے لیے سب رک گئے۔ ہر آنکھ تلاش کر رہی تھی کہ ان دو ہستیوں میں سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ عشق اور ادب کا امتحان دیکھیے۔ لوگ پہچان نہ پا رہے تھے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ دونوں کی عمریں اور وقار ایک جیسا تھا۔ تبھی سورج کی ایک کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ کر اٹھے اور اپنی چادر تان کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ مدینہ والوں نے جان لیا کہ جو سایہ کر رہا ہے وہ صدیق ہے، اور جس پر کائنات کی چادر تانی گئی ہے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جب پہلی بار مدینے والوں کی نظریں جمال نبوت پر پڑی تو وقت جیسے تھم گیا۔ وہ چہرہ جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا، وہ آنکھیں جو رحمت کا سمندر تھیں، اور وہ مسکراہٹ جس نے صدیوں کی دشمنیاں ختم کر دیں۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا، اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام لے اور کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام فرمائے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب واقع بستی قباء کے ایک بہت ہی معزز اور بزرگ سردار تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عمرو بن عوف سے تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جب ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یعنی بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور علی علیہ السلام بھی
बहनफ्स नफीस अपने दस्ते मुबारक से इतने बड़े बड़े पत्थर उठाते थे कि उसके बोझ से जिसमें नाजुक खम हो जाता था। और अगर आपके जानिसारे असहाब में से कोई अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप छोड़ दीजिए, हम उठा लेंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसकी दिलजुई के लिए छोड़ देते, मगर फिर उसी वजन का दूसरा पत्थर उठा लेते और खुद ही उसको लाकर इमारत में लगाते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई। 14 या 24 रोज के क़याम में मस्जिद कुब्बा की तामीर फरमाकर जुमा के दिन आप कुब्बा से शहर मदीना की तरफ रवाना हुए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आपके रदीफ थे। आपने बनु नज्जार को, जो आप अलैहिस्सलाम के मामू का कबीला था, इत्तला भेज दी थी। चुनाचे वो तलवारें हमाइल किए हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी माइयत में मदीना का रुख किया। बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पहुंचे तो जुमा का वक्त आ गया। रास्ते में कबीला बनी सालिम की मस्जिद में पहला जुमा आपने पढ़ा। यही वो मस्जिद है जो आज तक मस्जिदुल जुमा के नाम से मशहूर है। अहले शहर को खबर हुई थी कुब्बा से शहर की तरफ बढ़ता हुआ यह काफिला नहीं, बल्कि हक का वो सैलाब था जिसे रोकना अब नामुमकिन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनु नज्जार के गैरतमंद जवान हथियार लगाए सफ़ें बांधे पहरा दे रहे थे। ये तलवारें आज किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि कायनात के सबसे कीमती मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए चमक रही थीं। रास्ते में जिस कबीले की बस्ती आती, वो टूट कर मोहब्बत निछावर करता। हर कोई चाहता था कि ये मुबारक सवारी उनके यहाँ रुक जाए, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल न तोड़ते, हर एक की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते और खैर व बरकत की दुआएं देते हुए आगे बढ़ते रहे। शहर करीब आया तो जोश मुसर्रत का आलम बयान से बाहर था। पर्दानशीन खवातीन घरों की छतों पर चढ़ गईं ताकि उस नूर का दीदार कर सकें जिसका इंतजार बरसों से था। फिर फजा में वो तिराना गूंजा जो सदियों बाद आज भी कानों में रस खोलता है। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله दाए, यानी हम पर विदा की घाटियों से चांद तुलू हो गया। मदीना की बच्चियों की आवाजें आसमान तक पहुंच रही थीं और फरिश्ते भी इस इस्तकबाल पर झूम रहे थे। मदीना की गलियों में आज ईद का समा था, बल्कि ईद से भी बढ़कर कुछ। छोटे छोटे लड़के और गुलाम गिरोह दर गिरोह दौड़ रहे थे। उनकी आवाजें फजा में गूंज रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। ये वो मासूम आवाजें थीं जो किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि उस मोहब्बत के लिए निकल रही थीं जिसका चर्चा उन्होंने बरसों से सुन रखा था। तसव्वुर कीजिए, कायनात का वो अजीम शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके रोब से कैसर व कसरा लरसते थे, वो उन नन्ही बच्चियों के जोश को देखकर रुक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत से पूछा, ऐ बच्चियों, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इन मासूम दिलों ने तड़प कर एक जबान होकर कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर वो तारीखी मुस्कुराहट आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह। ये था वो रिश्ता जो इस्लाम ने मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया। इस्तिकबाल हो चुका, मोहब्बतों के नजराने पेश हो गए। अब मदीना का बच्चा बच्चा ये दुआ कर रहा था कि काश ये सवारी मेरे दरवाजे पर रुक जाए। हर बड़े से बड़ा सरदार ऊंटनी की लगाम थामने के लिए बेकरार था। तमाम कबाइल अंसार जो रास्ते में थे इंतहाई जोश मुसर्रत के साथ ऊंटनी की महार थामकर अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, आप हमारे घरों को शरफ नुज़ूल बख्शें। और फिर वो तारीखी लम्हा आया। कस्वा एक खाली प्लॉट के पास रुकी, एक बार बैठी, फिर उठी और दोबारा वहीं जमकर बैठ गई। कस्वा हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का नाम था। ये इशारा था कि सफर हिजरत की मंजिल आ पहुंची है। पास ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का घर था। जैसे ही ऊंटनी बैठी, अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु के नसीब का सितारा पूरी कायनात में चमक उठा। लोग अभी देख ही रहे थे कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने लम्हा जाया किए बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया और अपने घर की तरफ चल दिए। वो सामान नहीं उठा रहे थे, वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए फख्र और सादत का खजाना उठा रहे थे। कायनात का सबसे बड़ा मेहमान अब मदीना के इस सादा से 2 मंजिला मकान में क़याम फरमा था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने ऊपर की मंजिल पेश की, मगर आपने मुलाकातियों की आसानी का लिहाज फरमाते हुए नीचे की मंजिल को पसंद फरमाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु दोनों वक्त आपके लिए खाना भेजते।
और आपका बचा हुआ खाना तबर्रुक समझकर मियाँ बीवी खाते। खाने में जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का निशान पड़ा होता, हुसूल बरकत के लिए हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी जगह से लुक्मा उठाते और अपने हर कौल व फेल से बेपनाह अदब व एहतराम और अकीदत व जानिसारी का मुजाहिरा करते। जब मस्जिद नबवी और उसके आसपास के हुजरे तैयार हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम इन हुजरों में अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ क़याम पजीर हो गए। हिजरत का वो तारीखी दिन। मदीना की फ़ज़ाओं में एक ही नाम गूंज रहा था। लोग जौक़ दर जौक़ उस मुसाफिर के दीदार के लिए निकल रहे थे जिसका जिक्र सदियों से आसमानी किताबों में मौजूद था। इन मुसाफिरों में एक ऐसा शख्स भी था जो तौरात का सबसे बड़ा आलिम था, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु। वो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे। वो जानते थे कि हक की निशानियां क्या होती हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु इस नियत से आए थे कि दलाइल मांगेंगे, सवालात करेंगे और परखेंगे कि क्या ये वाकई वही नबी है। मगर जैसे ही उनकी नज़र जमाले नबूवत पर पड़ी, उनकी रूह ने पुकार कर गवाही दी। वो खुद फरमाते हैं कि जो ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, पहले ही लम्हे मेरे दिल ने फैसला कर दिया कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिले और फरमाया, ऐ लोगो, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ और रातों को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ो। ये सादगी, ये नूरानियत और ये कलाम देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने देर न की और फौरन पुकार उठे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम इस्लाम का जानिसार सिपाही बन चुका था। मदीना में सुकून तो मिल गया था, मगर एक खला बाकी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपने अहलो अयाल से दूर थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर ही में मुकीम थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफादार गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को एक अहम मिशन पर रवाना फरमाया। 500 दिरहम और 2 ऊंट, ये वो असासा था जिसके साथ वो मक्का की तरफ रवाना हुए ताकि कायनात की सबसे कीमती अमानतों को बहिफाजत मदीना ला सकें। ये कोई आम काफिला नहीं था, इसमें नबूवत की खुशबू थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी वालिदा हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा, ये सब एक नई जिंदगी की तलाश में मदीना की तरफ रवां दमा थे। इसी काफिले के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने घर वालों बशमूल हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ शामिल थे। मदीना की सरजमीन अपने उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बेकरार थी, लेकिन हिजरत की उस खुशी में कुछ जख्म भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का में रह गईं क्योंकि उनके शौहर ने उन्हें रोक लिया था, जबकि हजरत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हबशा की हिजरत पर थीं। आखिरकार ये काफिला मदीना पहुंच गया और हजरत हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम पजीर हुआ। मदीना की गलियों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना उनके दरमियान मौजूद था। ये वो बुनियाद थी जहां से इस्लाम की मुआशरती जिंदगी और तहजीब का एक नया बाब शुरू होना था। मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला चैलेंज एक ऐसी जगह की फरहमी थी जहां मुसलमान यकजा होकर अपने रब के सामने सर झुका सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बनु नज्जार के एक बाग पर पड़ी। अंसार की जानिसारी देखिए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसकी कीमत अल्लाह से लेंगे, आप उसे मुफ्त कबूल फरमाएं, लेकिन कुर्बान जाएं इस अदलो इंसाफ पर। वो जमीन 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हक मारना पसंद नहीं फरमाया। मोहब्बत अपनी जगह, मगर हक यतीम अपनी जगह। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के माल से उसकी पूरी कीमत अदा की गई ताकि मस्जिद की बुनियाद ही हक हलाल और अदल पर रखी जाए। मस्जिद की तामीर से पहले इस जगह की तत्हीर की गई, पुराने खंडरात गिराए गए, मुशरिकीन की बोसीदा कब्रों को साफ किया गया और जमीन को हमवार किया गया। ये महज मिट्टी बराबर करना नहीं था, बल्कि ये इस जमीन को एक अजीम रूहानी इनकलाब के लिए तैयार करना था। यहाँ कोई बादशाह किसी तख्त पर बैठकर हुक्म नहीं दे रहा था, बल्कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक मजदूर बनकर अपने जानिसारों के साथ कच्ची ईंटें उठा रहे थे। मिट्टी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास अतहर पर लगी थी और पसीना माथे पर चमक रहा था। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, आका आप रहने दें, हम कर लेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर दूसरा पत्थर उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बता दिया कि अल्लाह के घर की तामीर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यह थी वो आलीशान मस्जिद। खजूर के तने सुतून बने, कच्ची ईंटें दीवारें और खजूर के पत्ते छत। बारिश आती तो छत टपकती, सजदगाह गीली हो जाती। मगर उन कच्ची दीवारों के अंदर ईमान इतना पक्का था कि उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह थी वो आलीशान मस्जिद। खजूर के तने सुतून बने, कच्ची ईंटें दीवारें और खजूर के पत्ते छत। बारिश आती तो छत टपकती, सजदगाह गीली हो जाती। मगर उन कच्ची दीवारों के अंदर ईमान इतना पक्का था कि उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये टपकती हुई छत दरअसल जमीन पर आसमानी हिदायत का इस्तकबाल कर रही थी। ये थी मस्जिद नबवी। 60 गज लंबी और 74 गज चौड़ी ये इमारत मिट्टी और खजूर के पत्तों से बनी थी। ये मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि एक रियासत का दारुल खिलाफा और एक नई तहजीब की जाए पैदाइश थी। मस्जिद के एक गोशे में एक सादा सा चबूतरा था जिस पर खजूर के पत्तों का साया था। उसे सुफा कहा जाता था। ये वो जगह थी जहां वो जानिसार क़याम करते थे, जिनके पास न घर था न माल, सिर्फ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तलब इल्म था। ये असहाब सिफा इस्लाम के वो पहले तालिब इल्म थे जिन्होंने फ़क्र व फ़ाक़ा में रहकर दीन की बारीकियां सीखी। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इस चबूतरे की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। मस्जिद नबवी की तामीर के साथ ही कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के लिए मस्कन तैयार करवाए। इब्तिदा में सिर्फ 2 हुजरे बने, एक हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए। जैसे जैसे अहले खाना की तादाद बढ़ी, ये सादा दीवारें बढ़ती गईं, मगर उनका मेयार जिंदगी वही रहा जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। मक्का से अपना सब कुछ छोड़कर आने वाले मुहाजिरीन के लिए मदीना के अंसार ने सिर्फ अपने घर नहीं बल्कि अपने दिल भी खोल दिए। ये तारीख इंसानी का वो अनोखा बाब है जहां अपना और पिराया की तमीज मिट गई और अंसार ने अपनी जमीनों, मकानों और तामीराती कामों में मुहाजिर भाइयों की ऐसी मदद की कि हिजरत करने वालों को कभी अजनबियत का एहसास न हुआ। इस जानिसारी में सबसे पहला और नुमाया नाम हजरत हारिसा बिन नौमान रजी अल्लाह अन्हु का आता है। वो मदीना के वो खुशनसीब सिपाही थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी ज़मीन और मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर तोहफा पेश किया। उनकी उसी वालहाना मोहब्बत का असर था कि अज़वाज मुतहरात के हुजरात मुबारका उन्हीं की ज़मीन पर तामीर हुए जो रहती दुनिया तक उनके लिए सादत का निशान बन। हज़रत बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हुजूर अलैहिस्सलाम से निकाह तो हिजरत से कबल ही मक्का में हो चुका था, मगर उनकी रुखसती हिजरत के पहले ही साल मदीना में हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत वलीमा फरमाई। मस्जिद नबवी की दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, लेकिन अभी एक आवाज की कमी थी। वो आवाज जो बिखरे हुए दिलों को एक मरकज पर जमा कर दे। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम के सामने ये सवाल था कि नमाज का वक्त होने पर सबको कैसे इत्तला दी जाए। किसी ने आग जलाने की बात की, किसी ने नाकूस बजाने की, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ और ढूंढ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए एक ऐसी पहचान चाहते थे जो गैरों से अलग और खालिस तौहीद पर मबनी हो। आखिर वो क्या आवाज थी जिसने आग, बगल और नाकूस के तमाम पुराने तरीकों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? वो कौन सा मुबारक ख्वाब था जिसने आसमानी कलिमात जमीन पर उतार दिए? और किसकी वो परसोज आवाज थी जिसने पहली बार मदीना की हवाओं में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया?